Hello students, myself Dr. Lakshmi Sheetal. Today I am going to discuss with you on standard costing problem. See the problem. From the following information, compute following variance. First one is material cost variance, second one is material price variance, third one is material usage variance. Then we will discuss standard material. Material P 40 units at the rate of rupees 10 per unit. Material Q 20 units at the rate of rupees 20 per unit. Material R 20 units at the rate of rupees 40 per unit. This is the information about standard material. Then we will discuss actual material. Material P 20 units at the rate of rupees 30 per unit. Material Q 10 units at the rate of rupees 20 per unit. Material R 30 units at the rate of rupees 30 per unit. With this information, we will calculate material cost variance, material price variance and material usage variance. Okay. We all are known standard cost is a predetermined cost and comparison with the actual cost. So हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड मटेरियल एंड एक्चुअल मटेरियल दिया है. Now we will solve problem. Okay. Draw one table. First column, draw 5 columns. Material, then standard material under the standard quantity and standard price, then actual under actual quantity and actual price. Okay. बिकॉज हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड मटेरियल एंड एक्चुअल मटेरियल दिए वाला है और आज जब हमें वेरिएंस निकालना है तो हम क्या करते हैं, दोनों का कंपैरिजन करके स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट और उसका कंपैरिजन हम किसके साथ करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट के साथ. ओके. जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में का डिफरेंस आता है उसे क्या कहते हैं, वेरिएंस. ओके. So here there are 3 materials P, Q, R. Okay. We will solve the problem. First one, material P. Material P. First हम क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करके लेंगे और उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस. ओके स्टूडेंट्स. सो मटेरियल P, how many units of material P for standard? Okay, 40. Price at the rate of rupees 10 per unit. Okay. And actual material, how many units? Yes, 20 units at the rate of rupees 35 per unit. Okay. Then I will write material Q. Okay. How many quantity for material Q, standard, for standard quantity? 20 units at the rate of rupees 20. Okay. And material Q actual quantity 10 units at the rate of rupees 20. Okay. Then write down material R. For material R standard quantity 20 units at the rate of rupees 40 per unit. Write down in at the rate of per unit in price column 40. Okay. Then actual quantity 30 units and price
at the rate of ₹30. These information already given in problem. हमने सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम में ही ये सारी इंफॉर्मेशन दी वाली है, बट एक टेबल करके लिया क्योंकि हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस. ओके, नाउ वी विल सॉल्व फर्स्ट calculation, that is material cost variance. Okay, write down. Material cost variance. Material cost variance. Okay, what is the formula of material cost variance, or what is meant by material cost variance? So material cost variance means difference between standard cost and actual cost. Okay, so formula क्या है, जैसे हम देखते हैं कि standard cost minus actual cost, material cost variance equal to standard cost minus actual cost. Okay, और standard cost को ही हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. हम क्या कहते हैं यहाँ पे, सो राइट डाउन फॉर्मूला, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मींस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. और स्टैंडर्ड कॉस्ट फिर से हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट, राइट डाउन ब्रैकेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. यानी हम यहाँ पे क्या कहते हैं, जब हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालनी की है तो हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. एंड जब हम एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस. ओके, गॉट इट एवरीवन? एंड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन होता है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट. ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस की साइन. ओके, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस, क्योंकि हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस. ओके, हमने ये टेबल, ये विद द हेल्प ऑफ टेबल हमें ये बहुत निकालने में इजी जाता है, सो हमने पहले टेबल निकाल के लिया. ओके, अभी हमारे पास प्राइस अवेलेबल है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस लिखेंगे. ओके, थोड़ा मैं एडजस्ट करके लेती हूँ. ओके, standard quantity already given in problem and standard price also already given in problem, इसीलिए हमने यहाँ पे एक टेबल करके लेने वाला है. तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40 यूनिट्स, into standard price, you can write symbol. Okay, standard price रुपीस के लिए, स्टैंडर्ड प्राइस 10. ओके, हम क्या निकाल रहे हैं, वेरिएंस निकाल रहे हैं. वेरिएंस यानी क्या, स्टैंडर्ड और एक्चुअल में का डिफरेंस निकालना है हर एक जगह में. सो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट में हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट में क्या डिफरेंस आता है ये निकालना है, दैट इज द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. सो एक्चुअल क्वांटिटी 20 यूनिट्स इनटू एक्चुअल प्राइस. एक्चुअल प्राइस कितने दिए वाली है, 35. ओके, ब्रैकेट क्लोज. Then you can multiply
units into rupees 10 will get rupees 400. 40 into 10 rupees 400 minus 20 units into rupees 35 will get the amount rupees 700. Okay, rupees 700. Then rupees 400 minus rupees 700. तो यहाँ पे when a cost is more than standard cost, it means that when actual cost is more than standard cost, there will be adverse. जब यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा, अभी यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड अमाउंट जो दिख रही है हमें स्मॉल दिख रही है रुपीज 400 और एक्चुअल की अमाउंट है रुपीज 700. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 400 माइनस 700, माइनस में आंसर आता है. जब माइनस में आंसर आएगा तो हम क्या कहेंगे, when actual cost is more than standard cost there will be adverbs. उसे हम यहाँ पे standard costing में क्या कहेंगे, adverbs. Okay, got it everyone? So हम यहाँ पे माइनस यानी 400 माइनस 700 माइनस के साइन नहीं देंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 400 माइनस 700 300 adverb. Okay, कब एडवर्स लिखेंगे, जब एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी, तो हम क्या कहेंगे उसे 300 एडवर्ब्स. ओके, ये हमने किसका निकाला, मटेरियल पी. ये मटेरियल पी के लिए पूरी क्वांटिटी हमें दिए वाली थी, बराबर है, मटेरियल पी. ओके, गॉट इट एवरीवन? Just wait. Okay, then we will calculate material cost variance, but इसलिए मटेरियल क्यू के लिए. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला, हम क्या कैलकुलेट करें, हमने तो सिर्फ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, बट हमारे पास यहाँ पे देयर आर 3 मटेरियल्स दिए हुए हैं, पी क्यू एंड आर. हर एक का हमें क्या निकालना पड़ेगा, वहां पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एडवर्स है या फेवरेबल है, हमें कैलकुलेट करना है. सो वी विल कैलकुलेट द मटेरियल क्यू, that is material cost variance. Okay, material cost variance equal to क्या है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. और स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना है यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. ओके, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, और वैरिएंस निकालना है यहाँ पे क्या आएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी into actual price. Okay, you can write down the value. ऑलरेडी इसी के लिए हमने टेबल बना के लिया, हमें इजी रहेगा.
So see the table, then Q. Okay. For material Q, how many units of material Q? Standard quantity? Yes, 20 units. 20 units into standard price. What is standard price for Q? 20 rupees 20. Okay. Then actual quantity already given in problem. Actual quantity Q 20, 10 units at the rate of rupees 20. Okay. At the rate of rupees actual price कितनी है हमारे पास 20 rupees 20 rupees 20 bracket close. Then you can calculate 20 units multiply 20 units into rupees 20 will get the amount rupees 20 into 20 400. Okay. साइन कौन सी आएगी माइनस. ओके क्योंकि माइनस and 10 units into rupees 20 will get the amount 200. Yes, rupees 200. ओके. अभी देखो हमने जब मटेरियल प्राइस वेरिएंस देखा था तो यहाँ वहां पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कम थी, एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा थी, तो उसमें क्या आ गया एडवर्स आ गया. इफ एक्चुअल क्वांटिटी इज लेस देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी देयर विल बी फेवरेबल वेरिएंस. ओके. जब इसमें से लेस हो जाएगा यानी प्लस में आंसर आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे फेवरेबल. ओके गॉट इट एवरीवन. कब? जबकि इफ एक्चुअल क्वांटिटी इज लेस देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी देयर विल बी फेवरेबल वेरिएंस. ओके. रुपीज 400 माइनस रुपीज 200 क्या आएगा 200 फेवरेबल. 200 फेवरेबल. रुपीज 200 फेवरेबल. क्यों? जब पॉजिटिव में प्लस में आंसर आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे फेवरेबल, और जब माइनस में आंसर आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे एडवर्ब्स. गॉट इट एवरीवन. ओके. तो मटेरियल पी जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में का डिफरेंस निकाल रहे तो मटेरियल पी में एडवर्ब्स आ गया और मटेरियल क्यू में फेवरेबल. ओके. देन we will calculate material R. Okay. क्या निकालना है मटेरियल को मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. ओके. टाइम मिल जाएगा. तो हाँ
मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। क्या है फॉर्मूला? जबकि हमारे पास मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यानी क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट में का हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। ओके, सो राइट डाउन वैल्यूज फॉर मटेरियल आर। ओके, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 20 units into स्टैंडर्ड प्राइस रुपीज, ये यहाँ पे दिए वाला है। ओके, 40 ये हम निकाल रहे हैं। ₹14 ब्रैकेट क्लोज माइनस, क्योंकि वेरिएंस निकाल रहे हैं हम स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट में का। एक्चुअल क्वांटिटी क्या दिए वाली है, 30 यूनिट्स इंटू एक्चुअल प्राइस 30 रुपीज 30। ओके, ब्रैकेट क्लोज, कैलकुलेशन करो, 20 यूनिट्स इंटू ₹40, 20 units into ₹40 will get the amount ₹800. Okay, ₹800 minus 30 units into 30 will get the amount ₹900. Got it everyone? So आंसर क्या आएगा, यहाँ पे भी देखो स्टैंडर्ड अमाउंट क्या है, लेस है किससे, एक्चुअल अमाउंट से। दैट इज द व्हेन एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट देयर विल बी एडवर्ब्स। तो यहाँ पे कौन सा वेरिएंस आएगा, एडवर्ब्स। गॉट इट एवरीवन? ओके, 800 minus 900, 100 एडवर्ब्स, 100 क्या आएगा, 100 रुपीज 100 एडवर्ब। जब माइनस में आंसर आएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो हमने जब मटेरियल, सिर्फ हमने अभी क्या कैलकुलेट किया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में हमने देखा फॉर मटेरियल पी के लिए एडवर्ब्स आ गया, मटेरियल क्यू के लिए 200 फेवरेबल आए वाला है, सॉरी यस, एंड मटेरियल आर के लिए 100 एडवर्ब्स है। गॉट इट एवरीवन? एक ध्यान में रखो, कभी भी जब माइनस में आंसर आएगा तो हम क्या कहेंगे उसे, सिंपल है, व्हेन अ कॉस्ट इज मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट देयर विल बी एडवर्ब्स, एंड जब प्लस में आंसर आएगा, इफ एक्चुअल क्वांटिटी इज लेस देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी देयर विल बी फेवरेबल वेरिएंस। वेरिएंस यानी क्या, हम डिफरेंस निकाल रहे। अभी यहाँ पे किसका डिफरेंस निकाला हमने, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। गॉट इट एवरीवन? ओके।